Assalamu alaikum, dear students of class 11th as well as NEET aspirants. Today we shall study about matter and its classification. And so far as matter is concerned, you do know anything that occupies space and has some. It is very old definition. People are using to say anything that occupies space and having some mass is known as matter. If I shall talk about this marker, it is matter. Air around us, it is matter. Clear? Yeah, definitely this cylinder, it is matter. That is many things that is around me, they are included in matter. So beta, anything that occupies space and having some mass. What about smell? What about smell? Is smell matter or not? Smell, if we shall say the smell of perfume, it is matter. What about affection? Is it matter or not? No. Affection is no more matter. Affection is no more matter. So when you point that me has saras an affection over. So once I make over neither it occupies space nor it is having some mass. Clear? So beta, please write down matter. So far as matter is concerned, as I have just mentioned, anything that occupies space, anything that occupies space and having some mass, anything that occupies space and having some mass is known as matter. Is known as matter. And as you know, as I have just mentioned, marker, for example, beta marker है या सिलेंडर अगर हम यहाँ पे लेंगे, सिलेंडर, आयर, board, etc. All these things are included in matter because all of them occupy space and are having mass as well. Clear? So that is why they are being included in matter. Now, as you know, we are now discussing this matter broadly. That is, as you know, matter can be classified or matter can be studied in two ways. That is, as you know, the physical classification of matter and the chemical classification of matter. So, whether जो ये matter है, तो matter, as I have just mentioned, it is being classified into two types. See, first one. तो बेटा number first में हम क्या कहते हैं? That is physical classification. फिजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है बेटा? फिजिकली अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन. और बेटा यह है केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन. सी द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. यहीं पे आप लिखिए, फिजिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू एज मेनी एज 3 टाइप्स. क्योंकि बेटा है तो 5 टाइप्स, लेकिन ब्रॉडली व्हेन वी स्पीक अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. क्लियर? हाँ बेटा. तो यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा 3 आते हैं. ए पार्ट दैट इज सॉलिड्स, बी पार्ट लिक्विड्स एंड थर्ड वन सी पार्ट दैट इज गैसेस. क्लियर? लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन बेटा अगर आप देखेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? ए पार्ट एलिमेंट, बी पार्ट कंपाउंड, और बेटा थर्ड वन एज यू नो सी पार्ट दैट इज मिक्सचर. क्लियर? एज यू नो फुलियम,
Let me first explain the physical classification of matter. So far as I have just mentioned, that is physically matter can be classified into as many as 3 types. हाँ बेटा, अब आप इन 3 टाइप्स यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन को ब्रॉडली लिखिएगा. ऐसे होता हूँ मैं थोड़ा लिखे. देखो वो बोलना. एक साइड तो लिखिए सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. बे साइड क्या? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. वंश तो यम करुन गोबरमियो ना. Now you please underline physical classification of matter. Physical classification of matter. So please underline physical classification of matter. बेटा ये कुछ थोड़ा सा सिंपल लेक्चर है because you have already studied about these points in your earlier class, that is in class 9th as well. Physical classification of matter, and you know matter is physically classified into 3 types. Matter is physically classified matter is physically classified into as many as 3 types. Into 3 types. क्या क्या है बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो बेटा आप एक काम कीजिए, सॉलिड बीच में लिखिए लिक्विड. अब हम इनको लिखेंगे थ्रू द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस. solids, liquids and gas. या solid, liquid and gas. So ऐसे क्लियर solids, liquids and gas. चलो बेटा ध्यान रखिएगा, जहां तक सॉलिड्स की बात आ रही है तो बेटा जहां सॉलिड्स की अगर हम बात करेंगे, जो सॉलिड्स होते हैं इनकी जैसे डेफिनेट शेप होती है, occupies a definite volume. As I have just mentioned, I am talking about this marker. This marker is a solid. क्लियर? तो बेटा इस मार्कर में जहां तक आप देखेंगे बेटा इसकी ये मार्कर शेप है ना. तो कहते हैं ना मार्कर को मार्कर की शेप है. सिलेंडर को देखिएगा सिलेंडर की शेप है. बोर्ड को देखिए बोर्ड की शेप है. क्लियर? तो बेटा हर किसी सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और इट ऑक्युपाइज अ डेफिनेट वॉल्यूम. अगर आप मार्कर को यहाँ पे लेंगे ये इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा. आप इस टेबल को ले लीजिएगा ये इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है. आप इस रूम को ले लीजिएगा इसने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है. इस बिल्डिंग को ले लीजिएगा इसने बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है. क्लियर? तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स possess a definite shape. Solids possess a definite shape and occupies a definite. Solids possess a definite shape and occupies a definite volume. क्लियर? चलो बेटा लिक्विड्स की बात करते हैं. लिक्विड्स ऑक्युपाइज अ डेफिनेट वॉल्यूम. बेटा आप पानी रखते हैं ना गिलास में तो गिलास की शेप बनती है. बकेट में रखते हैं तो बकेट की शेप बनती है. आप सिंटेक्स में रखेंगे तो सिंटेक्स की शेप बन जाएगी. तो शेप उस चीज की बनती है जिसमें आपने इसको प्लेस किया हुआ है. लेकिन बेटा ये ऑक्युपाई डेफिनेट वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करते हैं. क्या अगर ऐसे वही तो बकेटस में तथ में सोरी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर. क्लियर? गिलासस में थो वही गिलास सोरी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर. तो बेटा यहां पे हम मेंशन करने जा रहे हैं लिक्विड्स occupy a definite volume. Liquids occupy a definite volume, but not a definite shape. हाँ बेटा उस चीज की शेप होती है इनको जिसमें इसको प्लेस किया जाता है. However, the shape of the object
उस चीज की शेप होती है, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच इट इज प्लेस्ड। ठीक है बेटा, इन विच इट इज प्लेस्ड, इन विच इट इज प्लेस्ड। तो बेटा जिस चीज में आप इसको रखेंगे तो उसी चीज की शेप होगी। क्लियर? अब आ जाएगा गैसेस में। भाई गैस तो इस वक्त आयर हमारे बीच में है, कैसी शेप है वो भी तो मालूम ही नहीं है, कितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया वो भी तो मालूम ही नहीं। क्लियर? तो बेटा जो गैसेस होते हैं, जैसे हम आयर की कॉमन एग्जांपल की बात करते हैं, तो गैसेस नाइदर दे पॉजेस अ डेफिनेट शेप नॉर दे ऑक्यूपाई अ डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ बेटा, तो फर्स्ट वन में गैसेस neither possess a definite shape, gases neither possess a definite shape nor occupies a definite volume, Gases neither possess a definite shape nor occupies a definite volume. चलो बेटा नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, let us talk about the second important characteristic or property of the solids, liquids and gases. As I just mentioned the example of the marker. This is the marker that is just in my hands. But I'm trying hard to break it, but it does not get break. Why? Because there are strong intermolecular forces present in these solids. जैसे बेटा बहुत सारी सॉलिड्स है हमारे सामने, जैसे चेयर है, बोर्ड है, ये स्टैंड है, ये क्या कहते हैं इसको, मोबाइल फोन है, ये सिलेंडर है, ये गैस हीटर है, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो है ना सॉलिड शेप में। आप चाहेंगे, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू ब्रेक देम, लेकिन बेटा ये टूट नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसे भी सॉलिड्स है, बहुत सारे ऐसे भी सॉलिड्स है, जैसे हम कॉटन को लेंगे, कॉटन भी सॉलिड है। तो लेकिन when we talk about the majority of the solids, जब भी आप बात करते हैं ना तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। जैसे बेटा हमारा एक क्या होता है, जब भी हमारी स्टडी स्टार्ट होती है तो बेटा हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं, पहले क्या कहते हैं उस नर्सरी में जाते हैं, फिर जाते हैं LKG में, लोअर किंडरगार्टन में, फिर अपर किंडरगार्टन में, ऐसे फिर हम चले जाते हैं फर्स्ट में। लेकिन कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, चलो बेटा इनको डायरेक्ट फर्स्ट में रखो, फिर सेकंड में नहीं, इनको डायरेक्ट थर्ड में प्रमोट करो। तो वो कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं। ऐसे व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड्स, बेटा इनमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, क्योंकि अगर इफ आई एम ट्राइंग हार्ड टू ब्रेक इट, लेकिन ये टूट नहीं जाता है, दैट इज व्हाई देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन दी सॉलिड्स। क्लियर? सो यहां पे हम मेंशन करने जा रहे हैं, देयर आर स्ट्रॉन्ग, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड्स। क्लियर? चलो बेटा सेकंड वन यहां पे बात कीजिएगा, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड्स। क्लियर? आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, यानी कि पूरा जो यूनिवर्स है मानता है, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड्स। बेटा अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, जैसे मिल्क की हम बात करेंगे, पानी की हम बात करेंगे, तो ये लिक्विड्स हो गए। लिक्विड्स को आप नीचे डालेंगे तो क्या होता है, ये डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनमें जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। क्लियर? तो कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स, इनमें जो फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। तो यहां पे आप मेंशन करेंगे देयर आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयर आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयर आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किनमें है बेटा, इन लिक्विड्स। लेकिन बेटा एक बात अगर हम करेंगे गैसेस की, तो सेकंड वन गैसेस वेरी वेरी वीक, बहुत ही ज्यादा। जरा यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे गैस रिलीज हो जाएगा
अगर ये रेगुलेटर हम बाहर निकालेंगे, थोड़ी स्पिन को हम डिप करेंगे नीचे की तरफ, व्हाट विल हैपन, गैस विल गेट रिलीज्ड। लेकिन आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है इनकी स्मेल आ जाएगी। तो इस स्मेल आने का मतलब क्या है बेटा, दैट इज दीज गैस मॉलिक्यूल्स डू गेट डिस्पर्स्ड। क्लियर? दैट इज व्हाई देयर आर वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसेस, दैट इज व्हाई दीज गैस मॉलिक्यूल्स डू गेट डिस्पर्स्ड। क्लियर? हाँ बेटा, यहां पे हम मेंशन करने जा रहे हैं देयर आर वेरी वेरी वीक, देयर आर वेरी वेरी वीक, अगर चाहे वो जितना लिख जाओ, देयर आर वेरी वेरी वीक intermolecular forces, there are very very weak intermolecular forces in what, gases, in gases। तो बेटा कमन सॉल्टन म्यून गोबर हाई विस्कोसिटी लिक्विड कम विस्कोसिटी गैस। लेकिन फिर जब हम सॉल्ट्स की भी बात करते हैं, ज्यादातर हम जब विस्कोसिटी की बात करते हैं ज्यादातर हम विस्कोसिटी लिक्विड्स में देखते हैं, क्योंकि अपोर्शन टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज नोन एज। आपने देखा होगा ना, जैसे इनका क्वेश्चन है विस्कोसिटी ज्यादातर हम लिक्विड्स में ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी बेटा क्या चीज होती है, जरा यहाँ पे जो मैंने ये अपना पाम लिया है, जो मैंने ये अपनी हथेली ली है, व्हाट इज हैपनिंग, बहुत यथ पे त्रावन गोबर म्यून, मैं क्या डाल रहा हूँ इस पे, मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं त्रो यथ पे मिल्क, तथ लोग कम टाइम योताम वातनस। फिर मैंने क्या डाला, मैंने ऑयल डाला, तथ लोग थोड़ा ज्यादा पहन टाइम योताम वातनस। फिर मैंने डाला इस पे हनी, माछ, तथ लोग ज्यादा टाइम योताम। तो वनो विस्कोसिटी का ज्यादा, दैट इज हनी ज्यादा विस्कोसिटी। अपोर्शन टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी, अपोर्शन टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। तो बेटा जब हम ज्यादातर जब हम डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी चीज को, तो हम ज्यादा लिक्विड्स में देखते हैं विस्कोसिटी। यहां पे आप मेंशन कीजिए बेटा थर्ड वन। तो क्योंकि बेटा अभी मैंने बात की थी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बेटा कॉलम ने हमें क्या सिखाया है, जरा ध्यान रखिएगा। कॉलम ने हमें बताया कि इफ वी शैल जस्ट टेक टू चार्जेस Q1 Q2, बेटा उसने बताया फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। पढ़ा है फिजिक्स में, आपने डिटेल में पढ़ा है। तो बेटा कॉलम कहता है इनमें ज्यादा फोर्स होगा। कब ज्यादा फोर्स होगा, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, यानी कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड दो चार्जेस का होगा। यहाँ इफ यू हैव जस्ट टेकन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, you ever experience a very strong force of attraction or repulsion in between them. However, instead of taking strong magnets, you are just taking two weak magnets. ऐसा नहीं लग रहा है कि इनमें कोई strong force of attraction or repulsion है। लेकिन बेटा जो फोर्स होता है that is directly proportional to two charges, that is the magnitude of the charges Q1 and Q2. However, it is inversely proportional to the square of the distance between them, यानी कि F is inversely proportional to the square of the distance between them। आगे आप बेटा क्लास 12 में पढ़ेंगे फिजिक्स में। गो ये छू तो वुशमुत गोबर में हो, अगर तो नीव मैग्नेट इन योर टू हैंड्स and what you do, you just place your two hands close, you experience a very strong force of attraction or repulsion in between them। you know im satan to government the magnets chu niwan pachu athanan close to shubasan here na variya force। however, if you just put your two hands apart from each other, far apart from each other, we ever didn't experience any force of attraction or repulsion। ashun basne ki atmas cha asan ka force of attraction ya repulsion। go mechu wanun because ke tan sath to distance badhaun, use the distance badhai, F is inversely proportional to square of the distance। मैंने यहाँ पे बेटा एक बात बोलनी है, अगर स्ट्रॉन्ग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो डिस्टेंस इनमें बहुत शॉर्ट होगी। क्या अगर वो गोबर में बदल की मन में ज्यादा फोर्स थे ना, ये डिस्टेंस में कम क्या अगर तो डिस्टेंस बढ़ो तेल मन कम। क्लियर? तो क्या वो सॉल्टन में क्या शासन जरा बताए, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इनमें डिस्टेंस कम होगी ना। देयर आर शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, प्लीज राइट डाउन, देयर आर शॉर्ट intermolecular distances, there are short intermolecular distances किनमें, in solids।
देयर आर शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इन सॉलिड। नेक्स्ट क्या है बेटा, शाबाश, यहां पे आप देख लीजिएगा थर्ड वन, इनमें है थोड़े से लार्ज डिस्टेंसेस, क्लियर, क्योंकि फोर्स इनमें थोड़ा सा वीक है ना, तो इनमें ज्यादा डिस्टेंस होगी। देयर आर लार्ज intermolecular distances, intermolecular distances, there are large intermolecular distances in liquids। लेकिन बेटा एक चीज है, जरा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इफ यू आर सपोज टू शो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑलमोस्ट ओवरलैप, क्लियर। लेकिन बेटा अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, ये है ना तरीका होता है किसी चीज को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने का, तो ये है सॉलिड्स। क्योंकि बेटा जब आप सॉलिड्स को दिखाते हैं दैट इज मॉलिक्यूल्स आर ओवरलैप्ड ऑन ईच अदर, क्लियर। तो जब आप लिक्विड्स को दिखाते हैं आप दिखाएंगे मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। लेकिन व्हेन वी talk about gases, there are intermolecular spaces in gases। तो बेटा ये है liquids, ये है gases, that is why, तो इनमें ज्यादा है ना very large intermolecular distances, इनमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। that is why as I have already mentioned, जो gases होते हैं gases do not conduct electricity। अगर बेटा gases में इलेक्ट्रिसिटी क्या करंट फ्लो करती, तो बेटा आयर में भी वो करंट होती, तो सारी अवस्था यल चेन करंट, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाई गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट योर आंसर विल बी बिकॉज इन गैसेस देयर आर थ्री स्पेसेस, देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन गैसेस। हता ये जाय है तो छना गोबर में कुन जाय ते अगर ते हाई टेंशन कट करियो तब ये थोड़ा स्पेस नो करंट विल फ्लो, क्लियर। गो यस तो स्पेस छु ना तब दिवान, स्पेस ऑलवेज एक्ट्स एज अ बैड कंडक्टर, सो वही स्पेस होती है इन गैस, दैट इज व्हाई गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बेटा यहां पे आप लिखेंगे देयर आर वेरी 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 लार्ज intermolecular, there are very very large intermolecular distances in what? Gases. In gases, clear? Yes sir. चलो बेटा ठीक है, आगे देखते हैं। अगर भैया लागना पॉइंट्स लिखनी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखने हैं, मान लो आप थोड़ा नोट ये आज पॉइंट्स लिखे उस तो हाँ ऐसा ठीक है बे आज वन होस ना क्या ये तूत अगर बो लागना करवानी गवर्नमेंट पॉइंट ये वारिया पॉइंट्स वन पर इसमें कुछ खास मैकेनिज्म भी तो है नहीं, क्लियर। चलो बेटा आगे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन, इन सॉलिड्स। क्योंकि आप देखेंगे जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में फ्लोइंग टेंडेंसी बहुत कम होती है, यानी कि जीरो के बराबर होती है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो एट ऑल, मतलब फ्लो हो फ्लो ब्यागो लिक्विड्स अगर तो पकन त्रो गोबर में तुम फ्लो कर आप ना पकन ओर ब्यागो गैसेस खुदाए सवाल तुम आचार आसान बगार नहीं हमसायन सारे मुशुक आमुत ना आचार बगोर फलान क्या बिकॉज इन गैसेस दूर दूर तम डिस्पर्स ग। तो बेटा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, solids do not flow, liquids do flow। तो लिक्विड्स बेटा फ्लो करते हैं, लेकिन जो गैसेस होते हैं गैसेस हाईली फ्लो, गैसेस हाँ हाँ वो तो होता है, गैसेस हाईली फ्लो। गोबर में वन वुच तेल सारे खुद ज्यादा डिफ्यूजन सह गैस क्या मन ऑलरेडी गोड़े ब्राउनिया मूवमेंट। जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वन, गोबर में सॉलिड्स मे तुम वो ना वन मतलब नॉन कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल वनो इनकम्प्रेसिबल
यानी कि आई एम ट्राइंग हार्ड टू कंप्रेस इट वन यह ग कंप्रेस नो मगर म्यून गोबर अगर तुम लिक्विड निहुक लिक्विड ग कंप्रेस हता ये बकेटस मज वातन 20 लीटर तुम जा वुचमी तथ मज वातन 22 लीटर तिम तम कंप्रेस ग लेकिन गैसेस डू गेट कंप्रेस as I have mentioned अगर यथ मज कूत कैपेसिटी 19.1 kg या 0 kg अगर अत मज 1 kg आस ना दैट विल ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम मगर अगर तुम ये तुम 19 kg क्या गो 1 kg तो सोरे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कोरमुत और म्यून गोबर तेल क्या बे वुचान यम जन त्रो वन कूत त्रो अस त्रो 19 kg गोबर म्यून तमो तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर गो अत मे वन यम जन गैसेस compressible मगर solids to liquids incompressible please write down मैं वो ना गोबर में when we talk when you have to cotton they have to compress मैं वो ना when we talk मैं वो early में गोबर when we talk about पहला listen me जरा बेटा हम बात करेंगे हमारे जो इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें जब पत्ती वार्डरोब यह को ना कर गोबर में कंप्रेस नो ब्रो कन मोबाइल हे कंप्रेस कर नो ब्रो कन स्टैंड हे कंप्रेस कर नो ब्रो कन टेबल हे कंप्रेस कर नो ये चेयर ये सिलेंडर ये बोर्ड गो वी टॉक अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड्स बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन बेटा जब भी हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड्स तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल तो बेटा लिक्विड्स क्या होते हैं फिफ्थ वन लिक्विड्स आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल हाँ बेटा नो टॉकिंग ओनली वॉचिंग जरा गैसेस की बात करते हैं फिफ्थ वन गैसेस आर कंप्रेसिबल ये बहुत ज्यादा कंप्रेस होते हैं अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल बेटा आपका जवाब होगा ये इन गैसेस देयर आर फ्री स्पेसेस आप चाहेंगे इसको ना बेटा यहाँ पे सो यू कैन कंप्रेस देम अगर तो योर दी पिस्टन से गोबर में जोर दी योर दी व्हाट विल हैपन दे शैल कम क्लोज टू ईच अदर क्लियर दिस इज व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल because in gases there are intermolecular spaces. So that is why by applying some external pressure we can just compress them. Clear? Yes, sir. But it is sufficient for the solids, liquids and gases. Now please have a quick look of next classification, that is the chemical classification. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि दोन मॉलिक्यूलन दरमियान यो स्पेस है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वाइड ते के गोबर में इन केस ऑफ इन साथ छुकना एक माना पैकिंग व्हेन यू टॉक अबाउट पैकिंग इन सॉलिड्स वहां पे हम बेटा इस चीज को वाइड भी बोल सकते हैं वन च तक एक्चुअली हां तक सो स्पेशल पैकिंग च तक आसन दैट इज व्हाई इस पतिमन वन स्पेशल वाइड्स जैसे हम टेट्राहेड्रल वाइड्स बात करते हैं जैसे हम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बात करते हैं तक स्पेशल नाम चलो बेटा अब आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने कितने पढ़ने हैं तीन में क्या क्या है नाइस सबसे पहले हम एलिमेंट को लेना चाहिए इसे तक पाई गोबर में नीचे तक पढ़नी इसमें कोई खास न्यूमेरिकल तो आपको पूछी नहीं जाएगी लेकिन फिर भी हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए जरा ध्यान रखिएगा नाउ गेट अहेड विद केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लियर जरा ध्यान रखिएगा chemically matter can be classified into as many as 3 types qisman man se karan taqsim 3 qisman shabash government chemically matter is classified into as many as how many types into 3 types
चलो बेटा, नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज दिस? इट इज एलिमेंट। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, अगर केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री का स्टार्ट कहाँ से होता है? एलिमेंट से होता है। क्लियर? बेटा एक चीज है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो बेटा उनका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन वही है ना। व्हेन यू टॉक अबाउट एटम, तो एटम में स्ट्रक्चर आता है, एटम में कंपोजिशन आती है, एटम में बॉन्डिंग आती है, तो इन सब चीजों के रिलेटेड भी है केमिस्ट्री। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला, किसी ने मुझे ये क्वेश्चन ये पूछा था, सर यहाँ पे जो आपने कल कोई डिफिनीशन लिखी है, तो आपने वहां पे बताया था केमिस्ट्री इज ए नॉलेज ऑफ साइंस अचीव्ड बाय 3 थिंग्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा जो ये वाली डिफिनीशन है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन। बहुत सारी, जैसे कि आपने भी कल हमें कुछ डिफिनीशन यहाँ पे बताई। जब हम ये कहते हैं केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो बेटा ये भी बढ़िया डिफिनीशन है, क्योंकि बेटा एटम से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई एटम का कॉन्सेप्ट देता है, जैसे मैंने आपको कल बताया, विदाउट केमिस्ट्री वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। हाउ? बेटा जब हम बात करते हैं, जैसे मेरे ये बाल है, मेड ऑफ एटम्स। जैसे बेटा मेरा ये फेरन है, मेड ऑफ एटम्स। जैसे यहाँ पे मोबाइल है, मेड ऑफ एटम्स। दैट इज ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटम्स। When each and everything is made of atoms, how can we neglect chemistry in our life? So, as I have mentioned, we cannot imagine our life without chemistry. Clear? तो बेटा जब एटम की बात आती है, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है? तब खुद केमिस्ट्री वन की स्ट्रक्चर एटम आसन, कंपोजिशन क्या है एटम या मॉलिक्यूल की, तो बेटा उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन करना था, एलिमेंट की बात आई। एलिमेंट क्या है बेटा? आपने क्या सुना है आज तक एलिमेंट के बारे में? एलिमेंट हम बोलते हैं बेटा, इट इज ए प्योर सबस्टेंस। कहते हैं ना, इट इज ए प्योर सबस्टेंस। व्हाई इट इज ए प्योर सबस्टेंस? बेटा हम बात जब करते हैं ना हाइड्रोजन की, तो लिसन मी, जब हम बात करते हैं, वी आर हैविंग, प्लीज पे अटेंशन, वी आर हैविंग एज मेनी एज 118 एलिमेंट्स। क्लियर? लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है। इसमें बेटा सोडियम नहीं मिलेगा, इसमें हीलियम नहीं मिलेगा, इसमें नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ हाइड्रोजन में बेटा हाइड्रोजन के ही एटम्स मिल जाएंगे। क्लियर? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सोडियम, तो सोडियम में सोडियम की ही एटम्स मिलते हैं। दैट इज व्हाई वी यूज टू से दैट इज एलिमेंट इज ए प्योर सबस्टेंस।